science. Good morning everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? All good. बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सोशल साइंस मजे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, इजी लग रही है? As I assured you through this channel, social science made easy. आपके social science में वारे नारे होने वाले हैं. कॉन्सेप्ट आई होप फंडास क्लियर हो रहे हैं और सोशल साइंस आप सबको इंटरेस्टिंग लग रही है. दिस इज माय मेन पर्पस बच्चों. सोशल साइंस इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए बच्चों आप सबको, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट फंडास क्लियर हो जाएंगे. And social science, बच्चों, let me tell you something about social science. It is such a beautiful subject. आप समझ लो, it is just a part of our life. We can learn so much from social science and social science can give us so much awareness about life. Social science क्या है बच्चों? हम कहाँ रह रहे हैं, किस environment में रह रहे हैं, कहाँ हमारी country कैसे form हुई है, everything is being taught in geography, right? हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ सोसाइटल लेवल, एट अ कंट्री लेवल, पॉलिटिक्स एंड हमारे पास एक्सपीरियंसेस से हमें क्या सीखने को मिल रहा है एंड हम उस एक्सपीरियंसेस से लर्न करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं. History has taught us, not just the Indian history, the world history has taught us so much, and particularly, yes, of course, the Indian history, right? And बच्चों, हमारा मेन एजेंडा क्या है? कंट्री का मेन एजेंडा क्या है? डेवलपमेंट, ग्रोथ. हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए. इंडस्ट्रीज कैसे डिवाइडेड हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, द टर्शरी सेक्टर. Everything is being discussed in economics. Why are we living in this society? For what purpose? Everything, बच्चों, social science can give you so much awareness about life and इसकी practical application बहुत ज्यादा है. So बच्चों, अगर तो आपका social science में interest develop हो गया ना, तो आपका आधा जो लाइफ का एजेंडा है ना, लाइफ का पर्पस आपको समझ में आ गया कि हम किस सिनेरियो में रह रहे हैं और हम कैसे रह रहे हैं. So social science will teach you so much about life, I assure you and guarantee you that. Right? So अगर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो आप समझ लो बल्ले बल्ले है आप सबकी. Right? Now I shall move to the second part of the chapter development. Development समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पता चल गया. फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इन दिस फर्स्ट सेशन. क्या डिस्कस किया था? ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एंड आई आस्क्ड यू दी 3 क्वेश्चंस. आंसर पता चल गए? फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. सेकंड क्वेश्चन, which is do growth always lead to development? No, not always lead to development. Social parameters को भी consider करना पड़ेगा to ensure the development of the people of the country. And the third question, which is a broader concept, growth or development? Development is a broader concept. I hope things are now absolutely clear to you and I am quickly moving to the further part of this chapter, right? Give me a thumbs up. Yes. So bachcho, I'm starting the this session with the question, what is meant by economic development and what are the 2 bases of measuring economic development of the country? अब I'm sure कि ये आंसर तो अब आप भी मुझे easily बता सकते हैं. डेवलपमेंट क्या है बच्चों? बताइए. डेवलपमेंट जहां पर ग्रोथ भी हो रही है और सोशल पैरामीटर्स भी कंसिडर किए जा रहे हैं. बोथ द फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो डेवलपमेंट दैट improve the economic well-being, which means growth and quality of life. कैसे श्योर होगी quality of life? Through the social parameters, as I discussed. So the development would be which improve the quality of life and economic well-being of people. तभी development होगा. Economic well-being कैसे हो सकती है? Growth कैसे हो सकती है? जब jobs create होंगी, creating more jobs, increasing the income and ensuring the high return on investment. Investment करिए, उससे return ज्यादा आएंगे तो growth तो हो ही जाएगी, right? And quality of life बच्चों कैसे श्योर होगी? The social parameters, as I just said, access to healthcare, level of education, affordability of goods and services, nutritious diet, sanitation, clean drinking water, ये सब आ जाएगा
क्वालिटी ऑफ लाइफ में। क्लियर है बच्चों? आई होप देयर आर नो डाउट्स ऑन डेवलपमेंट व्हाटसोएवर नाउ, राइट? क्लियर है? Now the second part, what are the two bases of measuring the economic development? क्या two bases हैं? One is the per capita income. As I said, World Bank compares the countries on the basis of per capita income, जो growth को measure करने के लिए use किया जाता है. So assume किया जाता है कि growth हो रही है तो development भी हो ही रही होगी. So per capita income becomes the one basis to measure the development of the country. Second basis is the human development index. अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? दिस आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन, बट बिफोर दैट आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. द 3 points which are very clearly given in your chapter and becomes important from the perspective of your exams, right? So first point बच्चों, 3 points about development you need to know about this. Right? क्या है वो 3 points? Let's have a discussion on this. First point is the development goals are different for different people. हर लोग different groups के लिए बच्चों development goals different हैं. It is not the development goals जो agenda है कि farmers की development कैसे होगी would be different from the development of the industrialists, and it would be different from the development of the salaried class people. I have given this as an example. लेट्स सी. अब बच्चों फार्मर्स को क्या लगता है कि उसकी ग्रोथ कब होगी, उसकी डेवलपमेंट कब होगी? जब उसको हाई सपोर्ट प्राइस मिलेगा. जो भी वो क्रॉप उगाएगा, हार्वेस्ट करेगा, अगर उसको उसके ज्यादा पैसे एश्योर मिल होते हैं तो मतलब उसकी तो बल्ले बल्ले है, राइट? उसकी डेवलपमेंट वो उसको उस तरीके से फार्मर्स अपनी डेवलपमेंट को, अपनी ग्रोथ को उस पर्सपेक्टिव से परसीव करता है कि जब मुझे हाई सपोर्ट प्राइस मिलेगा, मुझे कंटिन्यूअस इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, पानी चाहिए क्रॉप्स को. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर वाटर, दे डू नीड नॉट डिपेंड ऑन द रेन फॉर द इरिगेशन पर्पस, फॉर द वाटर. तो बेसिकली अगर इरिगेशन फैसिलिटीज एश्योर हो जाए तो क्रॉप्स तो उगेंगी, फसल अच्छी होगी, एंड विच वुड एश्योर देयर ग्रोथ. Right? So high irrigation, continuous irrigation facilities, high support price, and there should be, if subsidies are given on the fertilizers. So these parameters which assure the growth of their harvest, that would assure the development for the farmers. That is the development goals for the farmers. क्लियर है बच्चों? हर किसी के गोल्स, जो डेवलपमेंट का स्कोप डिफरेंट हो जाता है फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होगा? चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल रही है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, वर्कर्स बहुत लगते हैं कई इंडस्ट्रीज में, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में. तो अगर चीप लेबर मिल गई तो मतलब वारे नहीं आ रहे इंडस्ट्रियलिस्ट के. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट लो रेट्स, कम लो रेट्स पे मिले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लो बोरोइंग रेट्स हो, फाइनेंसिंग जितनी जरूरत होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, अगर उनको कम रेट पे फाइनेंस मिल जाए तो उनका बेसिकली साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, फ्लो बढ़ता चलता रहेगा, और जिसके कारण उनकी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट अच्छा इंप्रूव हो जाता है. सो हर किसी के, आई मीन टू से कि डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट. फॉर सैलरीड पीपल, क्या उनको चाहिए होगा सैलरीड लोगों को कि इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती रहे या लो बोरोइंग रेट्स हो? ऐसा कुछ नहीं है. उनको चाहिए कि हमें सैलरी ज्यादा चाहिए तब भी हमारी डेवलपमेंट है कि नहीं है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले. वो सुबह जाते हैं सैलरीड लोग, रात को लेट नाइट आते, तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाए तो उनके लिए वो ही डेवलपमेंट है. एज आई सेड, इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स बोथ आर इंपॉर्टेंट टू एश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. सो एज आई पॉइंटेड आउट एग्जाम्पल से, आई होप क्लियर हो गया है. हर किसी की डेवलपमेंट वेरीज, डेवलपमेंट गोल्स वेरीज. So definition of development varies with person to person. This is the first point that I wanted to discuss with you. Clear हो गया है बच्चों? समझ आ गया easily? चलो next move. Let's move to the second point. Second point is, what is development for one? एक की development may not be the development for the other. एक की development दूसरी के लिए destructive भी हो सकती है. अब कैसे? अभी जस्ट मैंने आपसे बात करी, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी एट दी लो कॉस्ट. अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, एंड दैट टू एट दी सब्सिडाइज्ड रेट. लेकिन डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों जगह चाहिए ना, तो वो डैम कंस्ट्रक्ट करते करते वहां पर जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया.
उनकी उनको कहीं और सेटलमेंट दे दी एंड दे बिकम द सफरर्स। उनको वहां पर एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपनी लाइफ के साथ। सो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट माइट बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? सो एक की डेवलपमेंट, एज आई सेड कि सबका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। सबके इंटरेस्ट डिफरेंट है। फार्मर के इंटरेस्ट अपने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने थे, सैलड लोगों के अपने थे। दे हैव डिफरेंट लाइफ सिचुएशन एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। सो उनके लिए डेवलपमेंट का एजेंडा ना उनके काम से रिलेटेड हो जाता है और उनकी अपनी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो जाता है। सो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द अदर एंड इट might be destructive. It may not be development for the other. Clear हो गया? Second point clear, and question has come in your exams. People have conflicting development goals and support the statement with example. I hope now you can very well able to write in your exams. Clear हो गया बच्चों? Easily समझ आ गया है? चलो. Now the third point that I wanted to discuss. People look at mix of the goals for development. बच्चों development as I said एक नहीं है, एक की चीज के बढ़ने से डेवलपमेंट नहीं होगी। पैसे आ गए तो डेवलपमेंट नहीं है। बहुत से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सो इट कुड बी द मटेरियल थिंग्स लाइक मोर इनकम एंड वेजेस। वो तो बढ़नी ही चाहिए, तभी ग्रोथ होगी और तभी डेवलपमेंट होगी। बट डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। अब ये नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है बच्चों? सिक्योरिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब भी चाहिए। ये सब नहीं है श्योर होती तो डेवलपमेंट नहीं है। दो डेवलपमेंट नहीं हो रही है अगर लोगों वहां पर लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही, इक्वालिटी नहीं श्योर हो रही, तो कोई बात, किसी बात की डेवलपमेंट नहीं है। सो डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द मिक्स ऑफ गोल्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट द वन गोल। क्लियर है? सो 3 पॉइंट समझ में आ गए। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। Development might be conflicting. What is development for one may not be development for the other, and there are development includes the mix of goals. There is not just one goal that assure the development of the people. Clear है? Now the question, as I said, has come in your exams. Though the level of income is important, growth अगर हो रही है, income बढ़ रही है, it is important, but it is an inadequate measure of the level of development. लेकिन ये adequate नहीं है. As I said, development is dependent on the mix of goals. It's not dependent on just one parameter. So inadequate है as it measures development only based on money, and non-monetary things is totally excluded. So to non-monetary things like health, education, freedom, they are also important criteria in development, which we have discussed a lot about it, and I am sure you are very well aware of it. And we can, bachcho, even support the example of the case study. Support this with the example, the case study of Maharashtra, Kerala, and Bihar. Bachcho, याद है कौन सी case study थी? Wherein we discuss although the per capita income of Maharashtra is way higher than the per capita income of Kerala and Bihar, but if we see the human parameters, कौन कौन से human parameters थे? Human development parameters, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो बच्चों इस क्राइटेरिया पे अगर इन तीनों स्टेट्स को कंसिडर किया जाए तो केरला वाज एट अ बेटर स्टेज, एट अ बेटर रैंकिंग देन महाराष्ट्र एंड बिहार। सो बच्चों ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में, पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र वाज डूइंग वेल, एंड इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स केरला वाज मच हायर, एट अ बेटर position than Maharashtra and Bihar. So, bachcho, I hope now things are absolutely clear to you, and I need a thumbs up from you all. Right? चलो, अब बच्चों कंट्री की डेवलपमेंट क्या है? कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी? जब लोगों की डेवलपमेंट होगी, एज सिंपल एज इट। सो नेशनल डेवलपमेंट इज व्हेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ नेशन इज इंक्लूडेड, जिसमें बच्चों पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। क्लियर है? सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, सबके लिए डेमोक्रेसी का मतलब सेम होना चाहिए। पॉलिटिकल, सोशल में एजुकेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक में इनकम, हाई सैलरीज, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वी हैव डिस्कस्ड लॉट अबाउट इट, एंड आई एम श्योर इट इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, राइट?
So बच्चों national income और per capita income के basis पे the second point becomes an important basis for comparing the countries. As I said, growth को measure करने के लिए ये दो parameters use किए जाते हैं ना, national income और per capita income. वही से डेवलपमेंट को भी, उसी से ही डेवलपमेंट भी मेजर किया जाता है. वी हैव ऑलवेज डिसाइड, एज आई सेड, वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. ये एज्यूम करते हैं कि अगर ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट भी हो रही होगी. सो ऑल्दो द नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज, बट सो क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑन द कंट्रीज डेवलपमेंट. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स अकर हुए कि क्या ग्रोथ के होने से डेवलपमेंट भी हो रही होगी या नहीं हो रही है. समझ आ रहा है, ग्रोथ हमने नेशनल डेवलपमेंट को इनकम के बेसिस पे मेजर कर दिया, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए वेदर ग्रोथ इज एक्चुअली लीडिंग टू डेवलपमेंट और नॉट. क्लियर है बच्चों? Right. Now, बच्चों, the point that I discussed, two bases to measure the development of the country. One was the per capita income and another is this human development index. अब ये human development index क्या है? It is also the better indicator to measure the development of the country from the, अगर if we compare it with the per capita income से थोड़ा सा better index measurement है. क्या है ये? लेट्स हैव अ डिस्कशन. द फर्स्ट पॉइंट, इट हैज गेन्ड सिग्निफिकेंस ओवर द इकोनॉमिक कंपैरिजंस. अब बच्चों, इकोनॉमिक कंपैरिजंस कैसे होते हैं? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ऐसे कंपेयर किया ना कंट्रीज को ग्रोथ में, जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन ये थोड़ा उससे बेटर मेजर है. इट इज पब्लिश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है? बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. एवरी ईयर, हर साल यूएनडीपी पब्लिश करता है एंड इट कंपेयर्स द कंट्रीज ऑन द 3 पैरामीटर्स. ये नहीं भूलना है बच्चों, 3 पैरामीटर्स. वन इज दी पर कैपिटा इनकम, जो यूज किया जाता है जनरली ग्रोथ को मेजर करने के लिए, पर कैपिटा इनकम, राइट. एंड अनदर टू आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द एजुकेशन लेवल. अब बच्चों, आप सोच रहे होगी कि मैम ये 2 पॉइंट्स क्यों ऐड किया? आप खुद सोचो बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ऐड कर दिया जाए, इससे कितना कुछ पता चल जाएगा. कितनी एवरेज लाइफ है वहां पे लोगों की, उससे क्या पता चल रहा है. अगर अच्छी लाइफ, एवरेज लाइफ है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही होंगी, न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा होगा, वहां पर लोगों की फ्रीडम सिक्योरिटी एश्योर हो रही होगी. तो ये बहुत से फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड परसीव कर लिए जाते हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट ऐड किया, राइट. तो इससे एज्यूम किया जाता है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो मतलब डेवलपमेंट भी टू एन एक्सटेंट लोगों की वहां पर हो रही है. एजुकेशन लेवल से क्या पता चल रहा है? अगर हाईली क्वालिफाइड है, स्किल्ड लेबर कितनी है, जॉब्स कितनी मिल रही होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही होंगी, वहां की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी होगी, कौन से इंडस्ट्रीज में है, एग्री इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल लेवल में सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयड है कि टर्शरी सेक्टर में. सो दिस गिव्स अ लिटिल बिट हिंट कि वहां पर डेवलपमेंट किस स्कोप पे जा रहा होगा, right. So human development index, as I said, is a better indicator than the per capita income, surely, because इसमें per capita income तो already included है. So it is a better indicator to measure the development of the country. And India कौन से रैंक में है बच्चों? India is not at a good rank, but although rank has improved over time. India ranked 129 out of 189 countries and rank has improved with time. So बच्चों, इसको ऊपर लेकर जाना है, डेवलपमेंट श्योर करनी है लोगों की. कौन करेगा? आप लोग. बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, राइट. अब बच्चों, क्वेश्चन आ गया, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक किसके बेसिस पे मेजर करता है? On the basis of per capita income, and UNDP compares the countries, measure the development of the country on the basis of human development index. तो बच्चों, आंसर तो अब आपके लिए पक्का तैयार हो गया है. वर्ल्ड बैंक, the first point, compares the countries on the basis of per capita income, and per capita income क्या है? Narrow concept of development. और क्या बोला था? वर्ल्ड बैंक compares the countries into 4 categories. अब
higher income countries, upper middle, lower middle and low income countries. क्लियर है बच्चों? और यूएनडीपी बच्चों किस बेसिस पे कंपेयर करता है? कंपेयर्स measures the human development index on the 3 parameters: education level, life expectancy and the per capita income. So ये क्या है? broader concept of development and it ranks the countries, rank करता है. वर्ल्ड बैंक क्या करता था? कैटेगराइज करता था इनटू 4 कैटेगरीज और यूएनडीपी रैंक द कंट्रीज. क्लियर है बच्चों? Now comes the last topic of this chapter, sustainable development. बहुत easy topic है और बहुत easy way से clear होने वाला है. अब बच्चों डेवलपमेंट की हमने बहुत बात कर ली है. सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट दैट कैन बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग रन. ज्यादा देर के लिए डेवलपमेंट होगी फॉर डेवलपमेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एश्योर होगी, तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. अगर सपोज आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, इतनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी कि सारा वाटर पॉल्यूट हो गया, एयर पॉल्यूट हो गया, वहां पर सारे ट्रीज कट गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज कम रह गए, एनिमल किंगडम सफर कर गया, तो बच्चों फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या स्कोप छोड़ा? उनके लिए तो इन्वायरमेंट ही अनसूटेबल बना दिया एंड डेवलपमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा. क्लियर है? सो डेवलपमेंट आपने ऐसे करनी है कि अगली जनरेशन के लिए भी बहुत सा स्कोप छोड़ना है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं करने हैं, वाइजली यूज करने हैं रिसोर्सेज, और आपने इन्वायरमेंट को इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखना है, इन्वायरमेंट प्रिजर्व करना है, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं करना है. ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर हो गया? So development, it means undertaking development at a level that can be maintained for future generation. बच्चों future generation के लिए भी development का scope छोड़ना है. So development can be sustained for a long run. ऐसा ना हो थोड़ी देर के बाद development का scope ही रुक जाए. So अगर sustained होगा, development sustained होगी, उसको कहते हैं sustainable development. So we have to assure, all the countries have to assure the sustainable development. Right? Clear है बच्चों? Now इससे और क्लियर होने वाला है how development is unsustainable. हम कैसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल है, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा? फर्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. आपने सारे रिसोर्सेज ही खत्म करने वाले हो. वाटर कितना है? वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. ओनली 3 to 4% ऑफ दी अर्थ वाटर इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सो आपने वाटर ही खत्म कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन क्या यूज करेगी? कहाँ से पानी पिएगी? इलेक्ट्रिसिटी बच्चों नहीं वेस्ट करनी है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑयल, कोल, दे एग्जॉस्टिंग वेरी फास्ट, और बच्चों ये डिप्लीट हो रहे हैं और इनको फॉर्मेशन के लिए 1000 बिलियन 1000 ईयर्स लग जाते हैं. सो ये अवेलेबल नहीं है इतने इजिली. So we have to shift our focus to the renewable resources. समझ आया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे अपना थोड़ा सा फोकस कम शिफ्ट करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे लगाना है, ताकि ये रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल हो, नॉट जस्ट फॉर दिस प्रेजेंट जनरेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल. क्लियर हो गया? नाउ दी सेकेंड पॉइंट कि क्यों डेवलपमेंट अनसस्टेनेबल है. इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं करना है, लैंड डिग्रेड नहीं करना है, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काटे कहीं पर तो एफॉरेस्टेशन भी होना चाहिए, पेड़ उगाने भी है. सो बच्चों इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए. राइट? ऐसा ना हो कि एनिमल किंगडम शुड सफर, ये नहीं होना चाहिए. अपनी डेवलपमेंट के लिए एनिमल शुड नॉट बी द सफरर्स, एंड बच्चों फ्यूचर जनरेशन की भी इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है. क्लियर है बच्चों? रोड्स कहीं पे कंस्ट्रक्ट करी हैं तो वहां पे पूरा पहले एनालाइज करना है कि कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है और कितना उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज उसका किया जा सकता है. क्लियर है?
As I said in the box, Earth has provided enough to satisfy the man's need. धरती ने हमें इतना कुछ दिया है कि सब लोगों की नीड्स पूरी हो सके, बट बच्चों नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड. इतना नहीं दिया है कि लालच पूरा हो जाए. तो बच्चों लालच नहीं करना है. डेवलपमेंट should be in such a way that it can be sustained for a long run by wisely utilizing the resources. Clear हो गया? Now the last question and I end this session. Explain sustainable development and suggest two measures to ensure the sustainable development. As I said, कैसे होगा development sustainable? The pattern of development, 2 points, which promises judicious use of resources wisely use करने हैं, and there should be preservation of environment so that future generation को भी देखना है. That supports the future generation as well. I hope it is now absolutely clear to you all. What are the two measures to ensure sustainable development? कैसे sustainable development ensure करी जा सकती है? बच्चों फ्यूल से को बचाना है by choosing walk और bicycle over the four wheelers. Clear है सबको? एंड इससे क्या होगा? फ्यूल भी बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा, इन्वायरमेंट डैमेज कम होगा. अर्बनाइजेशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सिटीज कंस्ट्रक्ट करो, घर बनाओ, जो मर्जी करो, बट डिफॉरेस्टेशन ये नहीं कि वहां फॉरेस्ट एरिया कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रीज काट दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. इकोलॉजिकल बैलेंस एज आई सेड नहीं खराब होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए. थर्ड पॉइंट, judiciously using water resources. Water everywhere, but not a drop to drink. And controlling emission of the carbon gases. बच्चों carbon emission कम करना है. So we have to shift our focus to the other chemicals which does not pollute the environment. So तभी होगा sustainable development that can be sustained for the long run and supports the future generation as well. Clear है बच्चों? Now with this I end this topic. Chapter समझ में आ गया है, डेवलपमेंट चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया है. एंड बच्चों अगर ये सेशन आपने 2 देख लिए तो आप समझ लो आपकी है बल्ले बल्ले. क्लियर है बच्चों? Now the next topic that I'll be picking for you class 10 students is the first chapter of politics, power sharing. अब हम डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है और आपका पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है. You just need to stay tuned with this channel and follow see the series, right? So that's end from my side. Keep smiling, have a good day and bye bye बच्चों. Bye बच्चों, okay, take care.